स्टूडेंट्स, आई एम पुनी फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, why should we avoid standing close to a tuberculosis patient while he or she is coughing? Question number 2 है, some people fear that vaccines can be dangerous as it contains microbes itself. Please discuss and remove the fear. Question number 3 है, what is fermentation? Fourth है, name the preservatives used in kitchen on daily basis. Fifth है, what is the commercial use of yeast? Question number 6 है, whether we should use antibiotics in cold and flu. Question number 7 है, what is pasteurization? 8th है, why oil is used while making mango pickles. Next है, name the vaccine which is used against tuberculosis. Next है, what is nitrogen fixation. Next है, what is nitrogen cycle. Next है, viruses also infect animals. Give examples. Question number 13th है, a disease that can spread through direct contact with infected person. Give example. Next है, define pathogens. How do they enter our body? Question number 15th है, which microorganism is the cause of malaria? Next है, name few diseases caused by viruses. Question number 17th है, write name of some diseases caused by bacteria. Question number 18th है, which microorganisms are unicellular? Next है, name some multicellular microorganisms. और next है, what are antibodies? तो start करते हैं। Question number 1, why should we avoid standing close to a tuberculosis patient while he or she is coughing? Answer. Tuberculosis is also known as TB. It is an infectious disease usually caused by Mycobacterium tuberculosis bacteria. This disease mainly affects the lungs but also can affect any other organ such as kidney, spine and brain. It is an airborne disease which easily spreads when the infected person coughs, spits, speaks or sneezes. So we should avoid standing close to a tuberculosis patient when he or she is coughing. We may add that TB is a curable and preventable disease. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट कफिंग कर रहा हो यानी कि खांस रहा हो तो हमें उसके पास खड़े होने से अवॉइड करना चाहिए। इसका आंसर है कि ट्यूबरक्लोसिस को टीबी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। ये डिसीज जो है टीबी की, ये लंग्स को आमतौर पर इफेक्ट करती है, पर ये दूसरे ऑर्गन्स जैसे किडनी, स्पाइन और ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकती है। ये एयरबोर्न डिसीज है यानी कि हवा से हवा में फैलने वाली डिसीज है विच इजीली स्प्रेड्स। ये आसानी से फैल सकती है जब व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, स्पिट करता है, बोलता है या स्नीज करता है। इसलिए हमें ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के पास खड़े होने को अवॉइड करना चाहिए जब वह खांस रहा हो। एक बात ये ध्यान देने वाली है कि टीबी जो है ये एक क्योरेबल यानी कि इसका इलाज है, ये प्रिवेंटेबल डिसीज है। ये आपके सामने पिक्चर दी हुई है कि बैक्टीरिया के कारण ट्यूबरक्लोसिस होती है। टीबी को एंटीबायोटिक्स के साथ क्योर कर सकते हैं और अगर किसी पर्सन को लंग का टीबी है तो उससे टीबी स्प्रेड हो सकती है जब वह खांस रहा है या सींच रहा है या छाऊ कर रहा है या लाफ या सिंक कर रहा है। टीबी जो है वह क्लॉथ शेयरिंग यूटेंसिल्स, किसिंग, हगिंग के कारण नहीं फैलती। ठीक है। Next है, some people fear that vaccines can be dangerous as it contains microbes itself. Please discuss and remove the fear. Answer. A vaccine is a biological preparation which provides immunity against one or several diseases.
It is prepared from dead or weakened microbes. Vaccines, on entering our body, produce suitable antibodies. These antibodies remain in the body and fight with the harmful microbes in our body. Moreover, vaccines contain dead or weakened microbes, so they are not harmful for the human beings. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कुछ लोगों के मन में डर होता है कि वैक्सीन जो है वो डेंजरस हो सकती है, क्योंकि वैक्सीन में खुद में छोटे छोटे माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इस पॉइंट को हमने डिस्कस करना है और लोगों के मन में जो शंका है उसको दूर करना है। आंसर है कि वैक्सीन जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो हमें बहुत सी डिसीजेज से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये जो वैक्सीन होती है ये डेड और वीकेंड माइक्रोब से बनी हुई होती है। आजकल जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये जो कोरोना वायरस की कोविड-19 वैक्सीन भी हैं वो भी डेड और वीकेंड वायरस माइक्रोब से बनी हुई है। ठीक है, ये जो वैक्सीन हैं या ये जब हमारी बॉडी में एंटर करती हैं तो वो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं, और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये हमारे शरीर में रहती हैं, और जब हार्मफुल माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो उसके साथ ये जो एंटीबॉडीज हैं वो फाइट करती हैं। ये वैक्सीन जो होती हैं ये डेड और वीकेंड माइक्रोब से बनी हुई होती हैं, इसलिए ये ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल नहीं होती। Next, what is fermentation? Answer. The process of conversion of sugar into alcohol by yeast is called fermentation. अब क्वेश्चन है कि फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। ये आपके सामने फर्मेंटेशन का प्रोसेस दिखाया गया है कि जब शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, इट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। हियर ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन दिस प्रोसेस। Next, name the preservatives used in kitchen on daily basis. Answer. Vinegar and oil are common preservatives used in kitchen on daily basis. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि किचन में डेली बेसिस पर कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। इसका आंसर है विनेगर, ऑयल। विनेगर एंड ऑयल जो है वो आमतौर पर डेली यूज में होता है। ऑयल में आप जैसे अगर नॉर्थ इंडिया में है तो मस्टर्ड ऑयल आमतौर पर ज्यादा यूज होता है, अगर आप साउथ इंडिया में है तो सीसम जिसे तिल का तेल कहते हैं वो कॉमन प्रिजर्वेटिव के तौर पर अचार वगैरह में, पिकल्स में यूज होता है। Next, what is the commercial use of yeast? Answer. Baking bread and manufacturing of alcoholic drinks are the commercial uses of yeast. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि यीस्ट का कमर्शियल यूज क्या है। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यीस्ट के 2 मेन यूजेस हैं। एक तो ये ब्रेड बेकिंग के काम में यानी कि जो बेकरी इंडस्ट्री उसमें यूज होता है, और दूसरा अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे वाइन, बियर, इसको बनाने के लिए यीस्ट काम में आता है। Next, whether we should use antibiotics in cold and flu? Answer. We should not use antibiotics in cold and flu because these diseases are caused by viruses. Antibiotics are not effective against viruses. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि अगर किसी को कोल्ड या फ्लू हो तो उसको एंटीबायोटिक्स यूज करनी चाहिए। तो आंसर है नहीं, हमें एंटीबायोटिक्स को कोल्ड एंड फ्लू में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोल्ड एंड फ्लू जो है वो वायरसेस के कारण होता है, और वायरसेस के केस में एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होते। ये आपके सामने पिक्चर है कि एंटीबायोटिक्स कह रहे हैं आई डू नॉट केयर कोल्ड, कि एंटीबायोटिक्स क्योर कोल्ड को क्योर नहीं करते। Question number 7 है, what is pasteurization? Answer. It is the process in which milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds, killing most of the bacteria and then cooling quickly to a very low temperature. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि पास्चराइजेशन किसे कहते हैं। ये आपके सामने पास्चराइजेशन का प्रोसेस दिखाया गया है कि सबसे पहले जो फ्रेश मिल्क है उसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, और इससे जो बहुत से बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, और फिर बाद में जो मिल्क है उसको एकदम बहुत ही लो टेम्परेचर पर क्विकली कूल किया जाता है, और इससे
पेस्चराइज्ड मिल्क तैयार हो जाता है, जो कि बॉइलिंग के बिना भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब जो पेस्चराइज्ड मिल्क है इसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स नहीं है। Question number 8 है why oil is used while making macro pickles? Answer: oil acts as a barrier and prevents the bacteria from attacking the pickle and spoiling it. It increases its shelf life. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कौन सा कि मैंगो का अचार बनाना हो, आम का अचार, तो उसमें ऑयल को क्यों यूज किया जाता है? आंसर है कि ऑयल एक बैरियर की तरह एक्ट करता है और बैक्टीरिया को अचार पर अटैक करने से रोकता है और अचार खराब नहीं होता। इससे जो पिकल की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। ये आपके सामने पिक्चर है। आमतौर पर जो पिकल्स हैं उनको बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल या सीसम तिल का तेल का यूज होता है। Next, name the vaccine which is used against tuberculosis. Answer: BCG vaccine is used against tuberculosis. कौन सी वैक्सीन को टीबी के केस में यूज किया जाता है? टीबी के केस में बीसीजी वैक्सीन को यूज किया जाता है। Question number 10 है what is nitrogen fixation? Answer: our atmosphere has 78% nitrogen gas, but it cannot be utilized directly by the plants or animals. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen in the atmosphere is converted into ammonia or related nitrogenous compounds in soil. Nitrogen can be fixed by lightning, azotobacter bacteria, rhizobium bacteria, and certain blue-green algae. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं? आंसर है कि हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% गैस जो है वो नाइट्रोजन है, पर प्लांट्स या एनिमल्स इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है और नाइट्रोजन ये जो फिक्स की जाती है ये लाइटनिंग, आसमान में जो बिजली आती है उसमें से उसके द्वारा, या अजोटोबैक्टर बैक्टीरिया या रिजोबियम बैक्टीरिया या सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गा के द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है। ये आपके सामने दिखाया गया है कि रिजोबियम बैक्टीरिया रेस्ट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम crops. Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.